Warm welcome viewers, you're watching COVID Dispatch. I'm Preeti Chaudhary and my camera person Hitesh and I roll from the city of Varanasi, the eternal city they call it. Mahadev city has gone completely quiet. The onslaught of the virus it's seen over the last couple of weeks has stunned it. It's eerie to be standing here. For someone, I've covered so many events standing at this very spot at the Dashashwamedh Ghat. It's the time for the Aartis and all one can see is just one panda there. This used to be all chock-a-block, chaotic, full of people as the Aarti, the Ganga Aarti, would resound through the ghats in Varanasi. Very, very different of what I see here. But let's cut across now to our top story, and it comes from the state of Uttar Pradesh. We've been traversing the rural belt. Because it reminds me of my favorite line from a Margaret Atwood book, A Handmaid's Tale. And that line is, if you didn't want us to be an army, you should not have given us uniforms. It completely fits in with the Asha workers of Uttar Pradesh. They are right at the front in the rural belt fighting the COVID war. The first person there is an Asha worker responsible for figuring out if there is a COVID patient, taking him to the hospital, making sure if he's at home that he gets the medicine. Their uniform, white saris with brown borders. They've banded together this time because in the times of COVID where they're putting in many number of hours, I just want to tell you how much they get paid for it for a month to fight the COVID war, 2,200 rupees. And if they take too much time off, which is over 10 days, then cut in their monthly salary. The accredited social health activist, Asha, is today the first line of defense against corona in the hinterland. किसी को बुखार हो रहा है या खांसी आ रही है, जुकाम है, इसकी भी जरा शिकायत हो रही है तो वो जाके जांच जरूर करवा लें कोरोना की। बुखार, जुकाम, खांसी, अन्य कोई बीमारी भी 1.54 lakh Asha workers in the villages have been assigned the task of screening villagers, guiding them to quarantine centers and bringing medicine to those who are COVID positive but recuperating at home. पहले तो हमने 5 तारीख से 9 तारीख तक सर्वे किया, 40 घर प्रतिदिन इस गांव में कोविड की सर्वे में क्या करते हैं? सर्वे में हम घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रकार की चाचा दिक्कत है तो कहते बताइए क्या क्या देता हूँ, खांसी, बुखार, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, बीपी शुगर की बीमारी, कोई अन्य बीमारी हो तो आप बताइए। अरे मैडम थोड़ा बहुत हिचकिची लगती है लेकिन अब लोगों को हम जानते थे, इतना हमें पता रहता है कि इनके घर में काका है। हम लोगों को सब पता है। आपको पता है? पता रहता है सर मैडम, 1000 की पॉपुलेशन, मुझे एक एक बात पता है कि किसके यहाँ क्या है। हर रोज हमको इसी गली से निकलना है, चाचा और कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, और कोई तो दिक्कत नहीं है, तो सब लोग बताते हैं। इतना प्रेम नम्रता से बात करते हैं कि सब लोगों से 13 साल हो गए काम करते मिलते जुलते, प्रेम हो गया है, कोई बात छिपाता नहीं। इसका जो अंदर लोगों के अंदर डर जो बना हुआ था वो कुछ ज्यादा हो गया है। डर ज्यादा है? डर ज्यादा हो गया था तो आदमी फिर डरने भी बहुत लगा। जैसे कि पहले तो जांच हो भी जाती थी, अब तो काफी बार यहाँ भी जांच करवाने लोग आए हैं, टीम भी हमारे यहाँ 2-4 बार आई। लोग नहीं आते तो लोग डर, इतना भय बन गया है अंदर, पहले से ज्यादा कुछ ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ टीम ज्यादा आ जाती है तो जांच भी हो जाती है। बहुत ज्यादा कहना पड़ता है, जैसे हमारी आशाएं आंगनवाड़ी सब जाती है, मैं खुद जाती हूँ कहने, तब वो आती हैं इतना समझाने के बाद। जो यहाँ खत्म भी नहीं हुई अपने हालत में खत्म। Padras village in Kanpur district has seen 20 suspect COVID deaths in 20 days. The Asha workers here are holding a camp of antigen testing, locally feared as Janch. And this is a Janch team that is on ground. And there is a lot of fear. सोचा क्या था मैम, अब करना था, नौकरी भी थी और करनी थी, थोड़ा बहुत डर हुआ पर लेकिन इतना नहीं भी मैम, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, इतना अपनी बना के कैपेसिटी चलते थे कि इतना सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होगी, जैसे कि दूरियां बना के रहे हैं, मास्क भी लगा के रहे हैं, तो काम तो मैम कर। जैसे ये दूसरी लहर है, बहुत इसका कहर ज्यादा रहा है। जी तो ज्यादा लोग इसमें गए हैं, तो ये देखकर थोड़ा लगता था। घर में भी, घर में कौन कौन है? हस्बैंड है, बेटी है। बेटी और हस्बैंड के लिए डर लगता था? जी बिल्कुल। जाती हूँ मैम यहाँ से, फिर दूरी बना के थोड़े दिन, जैसे कभी यहाँ हुआ ऐसा कि व्यक्ति ऐसा पॉजिटिव मिल गया जिसके संपर्क में हम आए, तो उसमें भी कुछ दिन रहे अलग उनसे। घर जाके बेटी से मिलते नहीं हो? नहीं, तुरंत नहीं मिलती हूँ मैम मैं।
1 साल में ये देखा कि आदमी बहुत डर रहा था। जब हम सर्वे करने निकले, किसी को खांसी जुकाम भी होता था, वो डर के मारे बताता नहीं था, कहीं हमारी कोरोना की जांच न निकल आए, हमको बाहर न जाना पड़े, इस तरह से डरते थे। लेकिन फिर हम लोग ने ये समझाया कि भैया आप डरिए नहीं, दवा हम लोग के पास है, आप कोविड की जांच कराइए। दिक्कत तो मैडम अब कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, लेकिन अपना काम समझाना बुझाना, किसी तरीके से मोड़ को इंसान को लाना, ये अपना काम है। फिर आशा किस बात की? अगर अपना मोटिवेटर नहीं सही है तो फिर किस बात की? The working condition of Ashas, ANMs, auxiliary nurse midwives and AWWs, Anganwadi worker, is all quite the same in the times of the pandemic. Underpaid and overworked, living with the fear of infection. The Ashas, in their white saris with brown borders, the Anganwadi workers, in their pink saris and gold borders, and the ANMs, in their white medical coats. कितना घंटा होता है दिन का? दिन के मैम 24 घंटे होते हैं। नहीं, आपका कितना दिन तो मैम टाइम क्या, अब 4 भी बज जाता है, कभी 5 भी, कभी 6 भी। सुबह कब निकलती हैं? सुबह मैम निकलती हूँ 7:30 बजे। 7:30 बजे जी। वापस 6 तक पहुँच जाती हैं? जी। कोविड के समय में दिक्कत आई है कोई? हाँ जी मैम, दिक्कत तो बहुत मिली है। क्या है? अब आने जाने की मेन समस्या हमको बहुत हुई है। कैसे करती हैं? मैनेज करते थे, हस्बैंड को लेके कभी आती थी, पर हस्बैंड तो हर दिन नहीं आ पाएंगे। कभी नहीं आते थे। फिर सर ने भी हमारी गाड़ियां लगवाई, चलो कुछ दूरी से हम आपको छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से भी छुड़वा देते थे। तो ऐसे आना जाना कंटिन्यू चलता रहा। फिर पर मास्क आप लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। Mostly all Asha workers we spoke to had donned the white sari because things at home were financially bleak. क्यों बने आशा वर्कर? परिस्थितियाँ थी मैडम, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए बने। घर में कौन कौन है? हस्बैंड और हम। उनको डर नहीं लगता आप बाहर जाते हैं? लगता है तो क्या किया जाए, काम तो करना पड़ेगा ना मैडम। जब अपने पास कोई काम नहीं है ना, खेती है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। As COVID quietly ravages rural UP, these sari-donning women have entered the pandemic theatre as rural frontline warriors. आपको डर नहीं लगा? नहीं, वो थोड़ा तो लगा ही होगा। थोड़ा तो मैडम लगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी भी थी तो करना भी तो पड़ा था काम। घर में आपके जो लोग हैं उनको डर लगा आपके लिए? नहीं, अब लगता है हमसे कोई कुछ कहता नहीं। हम यहाँ से जाते हैं, तत्काल नहाते हैं गर्म पानी से, सैनिटाइजर करते हैं, गर्म पानी से अपने कपड़े धुलते हैं, तब हम अंदर जाते हैं। आशा से आशा जुड़ी है। हम लोग 13 साल हो गए यही काम करते करते। पैसा नहीं बढ़ा है? पैसा नहीं बढ़ा। 13 साल से वही पैसा है? 13 साल से पहले तो मैडम कुछ भी नहीं मिलता था। 13? हाँ, पहले 1000 मिला और फिर 22 साढ़े 10 से फिर बढ़ा तो इसे 2250 मिला। Armed with ill-fitted masks, just a small bottle of sanitizer. They know they've lost their own in this fight against corona. आशा वर्कर पॉजिटिव हुई है, 2 की सूचना है और उसमें हमारी एक आशा की मृत्यु भी हुई है। एक आशा की मृत्यु हो गई है? हुई है हमारी, तो ये हमारी बड़ी मतलब विडम्बना रही है। उसके वो स्टार्टिंग में हो गई थी, मतलब एजेड थी वो। अगर समय से इसकी जांच हो जाएगी तो तुरंत हमें। And all for 2200 rupees a month. That is their salary. And if too many days are taken off, even that salary is cut down. नहीं मैडम, कुछ नहीं होता, एक मजबूरी है हम लोग के सामने। अगर नहीं भी होगा तो भी करना पड़ेगा। अपने पास कम है तो भी खाना है उतना, थोड़ा ज्यादा है तो भी हिसाब से। अगर 2200 मिलता है तो उससे गुजारा नहीं भी होगा तो भी करना पड़ेगा। तो यही है कि पेट पाल लें, किसी तरह से थोड़ा थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। 12 घंटे का काम आप लोग करते हैं? रात में अगर फोन आ गया, अगर 12 घंटा यहाँ फील्ड में किया, अगर डिलीवरी आ गई तो रात 2 रात वहाँ पड़े रहते हैं 600 रुपए के पीछे। अस्पतालों में ताला लग जाता है कि डिलीवरी न लेके आओ, लेकिन हम लोग को लेके जाना पड़ता है, उनको हाथ छूना पड़ता है। मजबूरी उनके सामने है कि फील्ड वाले हम लोग के बिना जा नहीं सकते हैं। आगे चल के काम कर रहे हैं, शायद बड़े आशा करते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। सहारा है मैडम, सहारे से हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे बढ़े, शायद हम लोग बढ़ाए, सरकार काम कर रहे हैं। Call it reverse sexism. I have been on the road covering the corona crisis over the last 10 days in the state of Uttar Pradesh. And what I have seen, pulling in a lot more empathy, pulling in a lot more compassion and hard work, have been a lot of women. Yes, there have been a few good men,
who've been doing a lot of good work. But these few good women are punching way over their weight with very little money in hand. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. All right, viewers, we're going to go into a quick break. On the other side, we're going to shift focus to the city of Firozabad. As we keep documenting grief, we keep documenting suffering, it's also a time to also document those who are helping us through the suffering. We talk to the doctors of the Firozabad Medical College. Welcome back, viewers. You're watching our COVID dispatch, and this one is from the city of Firozabad. It's from the same hospital, viewers, where 114 ventilators were gathering dust, primarily because they were not sent out to the areas or districts which actually needed them for over a year and a half, while India was struggling to breathe. However, there was a beautiful silver lining we saw at this particular hospital as well. The staff at this hospital, mostly under 30, young doctors, putting in 10 to 12 hours every day, doing their best to manage a 100-bed ward. Important to tell their story as well. And with what we heard from the patients, they're doing a wonderful job. Let's begin with the cliché. Some heroes wear capes while others wear PPE kits. The hardships of the frontline workers in big cities is well documented this pandemic. We now bring you their stories from Little India, small towns battling the virus. Firozabad Medical College in Uttar Pradesh, a 100-bedded COVID hospital. Its COVID wards manned and mostly run by those under 30. Meet them, know them. Dr. Himanshu. He's coming down now from the wards to give a blood sample. बिफोर की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा प्रेशर कम है, बट ये नहीं बोलूँगा कि प्रेशर बिल्कुल ही नहीं है. नंबर ऑफ पेशेंट्स 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था. अभी पहले से थोड़ा सा कम है, बट अभी भी पेशेंट क्रिटिकल हैं, तो प्रेशर तो अभी भी बना ही हुआ है. यस. नाइट में मैं 12:30 के समथिंग यहाँ से रिलीज़ होता हूँ. उसके बाद मैं रूम पे जाके अपना नहाना है. नहाने के बाद खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं. मॉर्निंग में उठने के बाद वही अपना ब्रेकफास्ट लिया 1 o'clock 2 o'clock समथिंग. फिर लंच करने के बाद में यहाँ पे आके किट पहन के अंदर, उसके बाद में वही रात को फिर 12 बजे. यस. डर लगता है आपको कभी? जब फर्स्ट टाइम मैंने ड्यूटी, जब अप्रैल 2020 में जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, जब मेरे को जरूर डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन जब से तो पेशेंट हम टैकल कर ही रहे हैं, तो अब पहले सब प्रायोरिटी ये है कि बस पहले पेशेंट सही हो जाए. और अभी तो ये है कि बस अब हमसे ज़्यादा डर हमारे पेरेंट्स डरते हैं कि यस. बट पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेफ रहो, अब मतलब पेशेंट का ध्यान रख रहे हो, उसके साथ में अपना भी ध्यान रखना अच्छे से. अभी जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि पेशेंट को मेडिसिन के साथ में सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की और मोटिवेशन की ज़रूरत है. हाँ, मैं हर पेशेंट के पास जाके उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं. आप जितना ज़्यादा परेशान होंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, और उससे पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है. Meet the man behind the PPE kit. 28-year-old Dr. Himanshu. Dr. Himanshu, who ends up being a psychologist to many twice his age. His friend Dr. Atul has just returned from a 9-hour shift. मेरी ड्यूटी रहती है 11 बजे से सुबह 7 बजे तक. 8 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी रहती है, जिसमें हमें हर पेशेंट्स के से जाके पर्टिकुलर पूछना होता है कि उनकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है, उनके वाइटल्स देखना, उनका ट्रीटमेंट देखना, वेदर दे आर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट और नॉट, और उनका प्रॉपर फॉलोअप रखना. उसके अलावा अगर उनकी कोई इश्यूज होते हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेन होती है, उनका सॉर्ट आउट करना. हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ से हम हर टाइम पर कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते हैं. डिपेंडिंग ऑन अगर कभी पेशेंट डिटेरियोरेट कर गया, अगर बाई चांस भगवान अगर पेशेंट डिसीज भी कर जाता है या पेशेंट डिटेरियोरेट ज़्यादा कर रहा है, हमें उसको एट द स्पॉट पूरा ट्रीटमेंट देना. फिर हमारे जो सीनियर्स हैं उनको कंसल्ट करना,
बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट के जो रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं उनको कॉल करना, इसकी भी उन सब सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें टाइम कितना लग सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 8 घंटे को 9 घंटे भी हो सकते हैं और रुका रहना पड़ सकता है जब तक कि दूसरी शिफ्ट शुरू ना हो जाए, दूसरे डॉक्टर्स ना आ जाए। Dr. Shipra is a physiotherapist here. Unlike her colleagues who spend up to 10 hours in their PPE kits in one go, her time is flexible. लास्ट ईयर भी किया था। जब शुरू किया था तब तो लगा होगा। हाँ, तब पहले टाइम बहुत थोड़ा डर था, लेकिन अभी बिल्कुल डर नहीं है। अगर हम लोग डरेंगे तो फिर पेशेंट कैसे ट्रीट करेंगे? ठीक कह रहे हैं, पर आप क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो और कोविड पेशेंट्स हैं लार्जली, उनको जो चेस्ट में बहुत ज़्यादा होता होगा, तो कंजेशन उनके लिए कंजेशंस बहुत रहता है उनको चेस्ट में, इसलिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। हाँ। कैसे मतलब इसका अलग होता है क्या फिजियोथेरेपी जो कोविड पेशेंट्स होते हैं? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हम लोगों का। जैसे कि हम लोग जैसे उनको चेस्ट पीटी देते हैं सुपाइन में, मतलब सीधा उल्टा और लिटा कर, जैसे भी पेशेंट कंफर्ट फील करता है वैसे ही हम लोग उनको चेस्ट थेरेपी देते हैं। उसके बाद में हम लोग उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताते हैं, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, जितनी गहरी ले सकते हो आप उतनी गहरी सांस लेनी है। ये सब हम उनको गाइड करते हैं जिससे कि उनका लंग्स अच्छे से अच्छे जल्दी इम्प्रूव हो। वो थोड़ा सा मतलब कि इमोशन भी आता है, पता नहीं हम लोग घर जाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो हम उनको समझाते हैं कि नहीं, आप थोड़ा हिम्मत रखो अपने आप में, विल पावर अपनी इम्प्रूव करिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अपना घर जा पाए। As we continue to detail stories of suffering, it is but so important to tell the stories of those who are in the front line, witnessing that suffering and doing what they can as doctors. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Chaudhary for India Today. All right, viewers, with that, it's a wrap on this edition of COVID Dispatch. From the city of Varanasi, surreal, like I say, it's surreal. I've never seen it this quiet, this empty. Anyone who's been to Varanasi would not be able to recognize this city. Chaotic, full of people. Everybody wanted to get a word in. No one here today. It's COVID. And the city, of course, crumbling under the pressure of it. A quick break. Do stay with us. News and updates continue on the other side.